વિશ્વ હિન્દી દિવસ નિમિત્તે ગુજરાત હિન્દી સાહિત્ય અકાદમી ગાંધીનગર અને હિન્દી દલિત સાહિત્ય અકાદમી દ્વારા ગાંધીનગરના ચૌધરી કોલેજ ખાતે રાષ્ટ્રીય સંગોષ્ઠી ગુજરાત હિન્દી સાહિત્ય અકાદમી ગાંધીનગર હિન્દી દલિત સાહિત્ય અકાદમી દ્વારા ગાંધીનગર સ્થિત ચૌધરી કોલેજ ઓફ એજ્યુકેશન અને ચૌધરી એમએડ કોલેજના સંયુक्त उपक्रमे विश्व हिंदी दिवस निमित्ते हिंदी भाषा की वैश्विक व्यापकता और गुजरात विषय अंतर्गत एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठीનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ચૌધરી કોલેજ ઓફ એજ્યુકેશનના SR ચૌધરીની અધ્યક્ષતામાં આયોજિત આજની રાષ્ટ્રીય સંગોષ્ઠીમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે જાણીતા સાહિત્યકાર અને જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર નિર્ણાયક સમિતિના પૂર્વ સદસ્ય ડૉક્ટર કેશુભાઈ દેસાઈ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને આજના વિશ્વ હિન્દી દિવસ નિમિત્તે સૌને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી અને પોતાના વિચારો રજૂ કર્યા હતા। ત્યારે આજના આ કાર્યક્રમની શરૂઆતમાં ચૌધરી કોલેજની વિદ્યાર્થીનીઓ દ્વારા સુંદર પ્રાર્થના રજૂ કરવામાં આવી હતી। ત્યારબાદ મંચસ્થ મહાનુભાવો દ્વારા દીપ પ્રાગટ્ય કરીને સેમિનારને ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો હતો। ત્યારે આ પ્રસંગે હિન્દી દલિત સાહિત્ય અકાદમી ગાંધીનગરના અધ્યક્ષ ડૉક્ટર નરસિંહદાસ વણકરે ઉપસ્થિત મહાનુભાવોનું શાબ્દિક સ્વાગત કરીને અકાદમીની રચના અને કામગીરી અંગે વિસ્તૃત માહિતી આપી હતી। ત્યારબાદ હોદ્દેદારો દ્વારા મંચસ્થ મહાનુભાવો પુષ્પગુચ્છ અને શાલ ઓઢાડીને સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય હિન્દી સંસ્થાન આગ્રાના ડૉક્ટર સુનિલ કુમાર વિષય અંતર્ગત બીજ વક્તવ્ય આપ્યું હતું। ઉપરાંત આજના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત ખેરાલુ કોલેજના પૂર્વ પ્રાચાર્ય રણછોડભાઈ ચૌધરી, ડૉક્ટર ગોવર્ધન બંજારા, ડૉક્ટર કલ્યાણભાઈ વૈષ્ણવ, ડૉક્ટર ધનંજય જાદવ, ચૌધરી કોલેજના પ્રિન્સિપાલ ડૉક્ટર દિનેશ પટેલ, એમએડ કોલેજના પ્રિન્સિપાલ ડૉક્ટર પરવીન બાનુ મલેક સહિતના મહાનુભાવોએ પોતાનું પ્રાસંગિક પ્રવચન આપ્યું હતું। ભૂમંડલીકરણ બજારવાદના યુગમાં હિન્દી ભાષા વૈશ્વિક ફલક પર પોતાનો ડંકો બજાવી રહી છે, ત્યારે ત્રણેય સત્રમાં આયોજિત આજના સેમિનારમાં हिंदी भाषा की वैश्विक व्यापकता और गुजरात विषय अंतर्गत डॉक्टर के वैष्णव, डॉक्टर गोवर्धन बंजारा, डॉक्टर कीर्ति जादव तथा डॉक्टर धनंजय चौहान, डॉक्टर गेवजी भाटिया, डॉक्टर नियाज पठाण, प्रोफेसर SK वणकर, डॉक्टर अमित पटेल, डॉक्टर ज्योत्सना गोस्वामी, डॉक्टर पारसबेन चौधरी, डॉक्टर NS परमार, डॉक्टर मुकेश व्यास, प्रोफेसर रमण रोहित, डॉक्टर शीतल चौधरी, डॉक्टर रमण माधव सहितना મહાનુભાવોએ ભાગ લીધો હતો અને પોતાના મંતવ્યો રજૂ કર્યા હતા। આજના સેમિનારમાં સાહિત્યનો સંત કબીર એવોર્ડ મેળવનાર સાહિત્યકાર બાલકદાસ દલપત ચૌહાણ, નટુભાઈ પરમાર, રમણ વાઘેલા, પ્રતિભા ભટ્ટ સહિતના 125 જેટલા લેખકો, સાહિત્યકારો ઉપરાંત ચૌધરી કોલેજ ઓફ એજ્યુકેશનના વિવિધ ફેકલ્ટીના પ્રાધ્યાપકો અને વિદ્યાર્થીઓ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। અમદાવાદથી પધારેલા ડૉક્ટર ધીરજ વણકર દ્વારા સમગ્ર સેમિનારનું સુચારું સંચાલન કરવામાં આવ્યું હતું। गुजरात साहित्य अकादमी गांधीनगर, हिंदी दलित साहित्य अकादमी गांधीनगर और चौधरी महिला कॉलेज, BEड कॉलेज के तत्वावधान में आज विश्व हिंदी दिन के निमित्त पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उस संगोष्ठी में कोडिनार, अहमदाबाद, गांधीधाम, सूरत, बड़ौदा से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। 80 से 82 तक प्रतिभागी छात्रों ने अपना प्रपत्र पठन करने का निर्णय किया है। हिंदी विश्व मंच पर आज नंबर 1 पर है। बाजारवाद है, वैश्वीकरण है, मीडिया है, मनोरंजन है, टैलेंट है, चैनल है और मोबाइल कल्चर में हिंदी की जो बढ़ती हुई प्रशंसा है, बढ़ता हुआ स्थान है, इसको आगे बढ़ाने का एक विनम्र प्रयास है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज चौधरी संकुल में यहाँ महिला कॉलेज के अंतर्गत जो एक संगोष्ठी, राष्ट्रीय संगोष्ठी हिंदी दलित साहित्य अकादमी एवं गुजरात की जो हिंदी साहित्य अकादमी है उसके तत्वावधान में संपन्न हो रहा है, उसमें शरीक होने का मुझे बहुत आनंद है, बहुत खुशी है। हिंदी ही देश की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसको हर कोई व्यक्ति समझता है, बोलता है। विश्व में भी वो ऐसी तीसरे नंबर की भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, समझी जाती है। दुनिया का ऐसा कोई देश होगा नहीं जहाँ हिंदी के चित्रपट न दिखाए जाते हों, जहाँ मुरारी बापू जैसे संत
कि रामकथा न चलती हो। और मैं तो कहूँगा कि हिंदी के पास इतने बड़े नाम हैं, जैसे कबीर हैं, तुलसीदास हैं, और यहाँ तक कि हमारे गुजरात के ही दयानंद सरस्वती ने कभी ये कहा था कि मैं मेरे संप्रदाय का जो धर्म ग्रंथ है आर्य समाज का, वो संस्कृत के बड़े पंडित होने के बावजूद उन्होंने कहा कि संस्कृत तो देव भाषा है, जबकि हिंदी जो है वो देश भाषा है। तो देश भाषा जैसा शब्द, यानी कि राष्ट्रभाषा का ही पर्यायवाची शब्द स्वामी दयानंद ने दिया था, और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश फिर उसी में हिंदी में ही लिखा। तो हिंदी पूरे विश्व में फैली हुई है, और हिंदी कोई ऐसे संविधान में या किसी बड़े पैमाने पर यूएन जैसे संगठन के द्वारा मान्य हो या न हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो प्रजा के द्वारा, जनता के द्वारा आप ही आप कभी से मान्य हो चुकी है। और मैं तो समझता हूँ कि हिंदी के पास जो है वो शायद दूसरी भाषाओं के पास नहीं है। हिंदी पूरे भारत की भाषा है, और हिंदी हमारे लिए कोई अलग भाषा नहीं है। गुजरात में तो वो भी एक राजभाषा है, गुजराती की तरह ही। गुजरात में गुजरात सरकार ने 2 राजभाषाएं रखी है, एक गुजराती और दूसरी हिंदी। और हिंदी पूरे देश की एक संपर्क सेतु के रूप में, सेतु भाषा तो है ही, वो राष्ट्रभाषा ही है। हमारा सौभाग्य है कि आज विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी दलित साहित्य अकादमी गांधीनगर एवं गुजरात साहित्य अकादमी का हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हमें राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभ अवसर मिला है। चौधरी महिला कॉलेज गांधीनगर सेक्टर 7, चौधरी बीएड कॉलेज एवं चौधरी एमएड कॉलेज के प्राचार्य एवं आर्ट्स फैकल्टी के कन्वीनर जो हैं, खेरालू कॉलेज के पूर्व प्राचार्य रणछोड़ भाई चौधरी के सहयोग से आज हम हिंदी दलित साहित्य अकादमी का दूसरा राष्ट्रीय सेमिनार कर रहे हैं। गत वर्ष विश्व हिंदी दिवस पर हमने एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा में किया था। हमारा प्रचार प्रसार हिंदी का कलम नामक हम एक अनियतकालीन अंक चलाते हैं, और उसकी प्रतिलिपि सारे हिंदी विभाग को हम भेजते हैं। हम सब हिंदी के प्राध्यापक हैं, और सेवानिवृत्त होने के बाद भी हिंदी की सेवा करने का हमने सुअवसर प्राप्त किया, और इसीलिए हमने हिंदी दलित साहित्य अकादमी की स्थापना की। हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों और आज का सेमिनार क्यों? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जब संविधान की रचना की तो राष्ट्रभाषा का प्रश्न आया था, और एक पक्ष हिंदी में था, एक पक्ष अंग्रेजी का था, लेकिन दोनों में समान मत पड़े। तो अब निर्णायक रूप में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को मत देना था। वो पढ़े लिखे विद्वान थे, आज तक किसी भारतीय ने इतनी डिग्रियां हासिल नहीं की है, लेकिन वे जानते थे कि हिंदुस्तान में रहने वाले शोषित, पीड़ित, गरीब, अनपढ़ लोग अंग्रेजी नहीं बोल सकेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो उन्होंने हिंदी के पक्ष में मत डाला, और उसी दिन से 14 सितंबर से हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला। हम 14 सितंबर को भी हिंदी दिवस मनाते हैं, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे जो पदाधिकारी हैं वे हिंदी में किताबें भी लिखते हैं और समय समय पर प्रकाशित करते हैं, और हम दूसरी कॉलेजों में भी प्रवचन देते हैं। हम खुद भी लिखते हैं और लिखाने के लिए दूसरों को सहयोग करते हैं, और इस तरह से गुजरात में हिंदी दलित साहित्य अकादमी का प्रचार और प्रसार बढ़ रहा है। आप सबका अभिवादन करते हुए मुझे इस बात का गौरव है कि हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत। तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जहाँ भी आपका अकाउंट है, इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें।